کے ساتھ بہت امپورٹنٹ نیوز شیئر کر رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دیکھا گیا۔ دوستو ابھی سعودی عرب سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حج 2025 کے موقع پر خانہ کعبہ میں حضرت امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے۔ یعنی کہ حضرت امام مہدی سعودی عرب کے مکہ شہر میں آ چکے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی وائرل خبر کی پوری سچائی بتانے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا سچ میں خانہ کعبہ میں حضرت امام مہدی آ چکے ہیں، کیا سچ میں سعودی عرب کے مکہ شہر میں حضرت امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حضرت امام مہدی اور قیامت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کا حضرت امام مہدی اور قیامت پر پورا یقین ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو قرآن اور حدیث میں قیامت آنے سے پہلے کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں آنا بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کا یہی ماننا ہے کہ جب ہماری اس دنیا کا آخری وقت قریب آ جائے گا، جب اس دنیا میں ظلم و زیادتی ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر اس دنیا میں حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، جو نہ صرف اس پوری دنیا سے ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت کو قائم بھی کریں گے جس میں ہر انسان کے لیے امن اور سکون ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کون ہیں اور کہاں پر پیدا ہوں گے اور ان کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، یعنی کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی حضرت امام مہدی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام مہدی کا نزول سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوگا، اور ان کا نام یا تو محمد ہوگا یا پھر احمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ اب اگر بات کی جائے حضرت امام مہدی کے خاندان کے بارے میں تو حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ یاد رکھیں حضرت امام مہدی کا قد لمبا ہوگا، اٹھی ہوئی ناک ہوگی، پیشانی چوڑی اور روشن ہوگی، خوبصورت چہرہ ہوگا اور ان کی لمبی خوبصورت ناک ہوگی۔ آپ کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑا سا گیپ ہوگا۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی۔ آپ کی آنکھیں سرملی ہوں گی۔ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ اللہ کے پیارے نبی کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ دوستو پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مہدی مکہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس یعنی کہ فلسطین کی طرف چلے جائیں گے۔ وہاں پر جا کر جب امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں ہی امام مہدی ہوں جس کا تم لوگ سینکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے تھے، تو یہ سن کر سارے مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ یاد رکھیں اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر تقریباً 40 برس کی ہوگی، اور آپ امام مہدی ہونے کا اعلان کہیں اور سے نہیں بلکہ اسلام کے سب سے مقدس اور سب سے پاک جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس سے کریں گے۔ اس وقت آپ سفید لباس میں ہوں گے، یعنی کہ اس وقت آپ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ کے پاس اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے ساتھ ساتھ آپ کا جھنڈا اور تلوار بھی ساتھ ہوگی۔ اس طرح سے پھر حضرت امام مہدی کی حکومت اس دنیا میں تقریباً 700 سالوں تک قائم رہے گی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب اس دنیا میں کفار مسلمانوں پر کھلے طور پر ظلم و ستم کر رہے ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہوگا، جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، ہر طرف مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر جب حضرت امام مہدی اس دنیا میں آ جائیں گے تو آپ گناہوں اور ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ مگر اس وقت سعودی عرب کے مکہ شہر سے ایک خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں حضرت امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ میں امام مہدی کو دیکھا گیا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس وائرل ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں ہم آپ کو اس ویڈیو کی پوری سچائی بتائیں گے۔ تمام
तमाम मुसलमानों का कहना है कि वाकई इमाम मेहदी ही हैं। बाकायदा तौर पर पूरे हरम शरीफ में इनको सबने वॉक करते देखा है। वीडियो को मुकम्मल देखिए, कोई भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, देखा आपने यह वीडियो। इस वीडियो में एक नूरानी इंसान नजर आ रहा है जिसका लंबा चौड़ा कद है, उठी हुई नाक है, पेशानी चौड़ी है और ढकी हुई है। खाने काबा में लोगों को एक ऐसा अलग तरह का इंसान नजर आया जो हमारी इस पूरी दुनिया के लोगों से बहुत अलग नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा करने लगे कि सऊदी अरब के मक्का शहर में इमाम मेहदी का नुज़ूल हो चुका है, यानी कि खाने काबा में इमाम मेहदी आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि यह वीडियो रमजान के 3-4 दिन बाद का बताया जा रहा है। हालांकि यह वीडियो उस वक्त भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वक्त इंडोनेशिया में यह इंसान इमाम मेहदी के नाम से खूब छाया था, लेकिन उस वक्त यह वीडियो हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन अब हज 2025 से ठीक पहले इस नूरानी चेहरे वाले इंसान का वीडियो हमारे यहाँ पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए लोग बता रहे हैं कि खाने काबा में इमाम मेहदी आ चुके हैं। अब क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई, आइए जानते हैं अब इसके बारे में। दोस्तों, आज से महीने भर पहले खाने काबा में लोगों ने एक अलग ही तरह का नूरानी इंसान देखा, जिसके चेहरे पर नूरानियत और खूबसूरती अलग ही चमक रही थी। लंबा कद और गोरा चेहरा था, उठी हुई नाक थी और चेहरे पर एक अलग ही तरह की रौनक नजर आ रही थी। बस यही वजह रही कि लोग इसे देखकर इमाम मेहदी के आने का दावा करने लगे। हालांकि इस इंसान ने खुद इस तरह का कोई भी दावा नहीं किया। यहाँ तक कि इस इंसान को तो यह भी पता नहीं था कि कोई इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह इंसान इमाम मेहदी हो सकता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। इमाम मेहदी के आने में अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि हदीस पाक में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले बहुत सारी निशानियों का जिक्र किया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक खास निशानी तो यह बताई गई है कि जिस साल हज़रत इमाम मेहदी का इस दुनिया में ज़हूर होने वाला होगा, उस साल जो रमज़ान का महीना गुजरेगा, उस रमज़ान की पहली रात, यानी कि जिस रात रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, उस रात चाँद को ग्रहण लगेगा और फिर उसी रमज़ान के 15वें रोजे को सूरज को ग्रहण लगेगा। तो अभी जो यह रमजान गुजरा है, यानी कि 2025 में जो रमजान गुजरा है, तो इस रमजान में ना ही पहली रात को चांद को ग्रहण लगा था और ना ही 15वें रमजान को सूरज को ग्रहण लगा था। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि खाने काबा में दिखने वाला यह नूरानी इंसान हजरत इमाम मेहदी नहीं है। और दूसरी बात, यह इंसान खुद भी इस बात का दावा नहीं कर रहा है कि वो इमाम मेहदी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर यह नूरानी इंसान कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें, इसे लेकर हमने बहुत तहकीक की, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका कि आखिर यह इंसान कौन है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ का रहने वाला है। लेकिन हाँ, इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय जरूर दिखी है। कोई इसे कह रहा है कि यह चचन्या का सोल्जर है, तो कोई इसे यमन का बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यह नूरानी इंसान मिस्र का है। मगर लोगों ने सिर्फ अपने अपने अंदाजे लगाए हैं, लेकिन असल में किसी को भी इस बंदे की असल पहचान नहीं मिल पाई है। अगर आपके पास में इसे लेकर कोई जानकारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब दोस्तों, आपको हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात बिल्कुल हदीस से साबित है कि इस दुनिया में तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि हज़रत इमाम मेहदी इस दुनिया में नहीं आ जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक तब तक हज़रत इमाम मेहदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा जब तक कि इस दुनिया में क़यामत नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम मेहदी क़यामत के बिल्कुल करीब आएंगे। और इमाम मेहदी की सबसे खास बात तो ये होगी कि हज़रत इमाम मेहदी इस दुनिया में कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वो एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त हज़रत इमाम मेहदी का इस दुनिया में नुज़ूल होगा, उस वक्त इमाम मेहदी खुद उठकर नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि दुनिया भर के उलमाए किराम उनको पहचान लेंगे और फिर उनके हाथ पर बैत होंगे। और यही नहीं, हज़रत इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने के बाद सीरिया से एक बहुत बड़ा हमला इमाम मेहदी के ऊपर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस फौज को इस ज़मीन के अंदर धंसा देगा और फिर उसी वक्त खुरासान से एक फ़ौज निकलेगी जो हज़रत इमाम मेहदी के लिए लड़ेगी और उनकी मदद करेगी। यह जितनी भी निशानियाँ हमने आपको बताई हैं, यह सारी बातें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा आप जो भी बातें सुनो उस पर आप आंख बंद कर विश्वास मत किया करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर आप लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हो। आपने देखा नहीं कि कभी कोई खुद को नबी बताने लगता है तो कभी कोई खुद को इमाम मेहदी होने का दावा करता है।
और हम उस बात पर यकीन करके बैठ जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि क़यामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी से क्या क्या चीज़ साबित है और क़यामत की निशानियाँ किन किन चीज़ों के अंदर बताई गई हैं और कौन कौन सी निशानियाँ हदीस पाक से साबित हैं। यानी कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिसके बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी। इस बारे में हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, हमें इस बात पर गौर करके इस बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और आप सबसे ये गुजारिश है कि इस फितने भरे ज़माने में अगर कोई भी आपसे यह कह दे कि मैं इमाम मेहदी हूँ या फिर मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, यानी कि अब क़यामत तक कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब इसके बाद अगर कोई भी नबी इस दुनिया में आएगा तो उसे अल्लाह के प्यारे नबी का उम्मती बनकर ही इस दुनिया में आना होगा। याद रखें, अभी तो यह चंद लोग ही आपके सामने आए हैं, इसके बाद आने वाले दिनों में इन लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आगे आने वाले वक्त में हर दूसरा इंसान यही कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ। लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है, किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।